तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। और आज मैं बात करूंगा आपसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। सो देर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन एज वी नो ऑलरेडी. फर्स्ट लॉ, which is called as law of inertia, it has to deal with the inertia. The second law, which is the core topic of this video, that is about momentum. And the third law, which is very popular among everyone, whether you read physics or not, it is action reaction. Okay, so ये तीन लॉ हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट पता रहता है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो सेकंड लॉ है यहाँ पे, सेकंड लॉ को ही क्यों इतना महत्व दिया गया है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, दैट इट इज़ कॉल्ड universal law of motion. So let us understand this in this video, and I'll try to make this very simple. The second law of motion, Newton laws of motion, states that rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. तो जब भी एक बॉडी पर, एक ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी, तो उस केस में जो मोमेंटम होगा वो चेंज होगा, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हम इसको मैथमेटिकली समझते हैं. इसका मतलब है क्या? देखिए, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को लेट्स से एक प्लेयर ने किक किया. इस प्लेयर ने इसको किक किया, इस फुटबॉल को. Initially, the initial velocity is, let's say, it is u. This is the initial velocity, and ball has a certain mass. Let's say the mass is m. Okay, so when the ball was hit by the player, the velocity of the ball will certainly is going to change, or it may be like it is going to increase. Okay, so velocity, let's say the velocity is v now. The shape of the ball, my drawing is not that bad, not that good even. So the ball is same. Okay, so the mass remains the same, m, and you know that the momentum is nothing but the product of mass and velocity. So let's say the initial momentum was mu, and the final momentum has become, pf stands for final momentum, that is mv. And it has taken some time as well, let's say t seconds. Okay, the mass was in kg, the velocity was in meter per second. So I'm all using here the SI units, और हम यही करने वाले हैं. So what is the rate of change of momentum? What is the meaning of that? So moment change in first let us understand the change in momentum. What is change in momentum? Simple, it is the final momentum minus the initial momentum. The final momentum was mv and the initial momentum was mu. So if you take m common, it becomes v minus u. So it is a change in momentum. And when you calculate the change in momentum over time, divide by time, so what it will become? It will become mv minus u divided by t. Okay, so this is the change in momentum over time, and this is called the rate of change of momentum. This is called the rate of change of momentum. So rate has nothing to do with the rate, like in mathematics. The rate is generally refers to time. So with respect to time, what is the change in the momentum? Okay,
So this is how we can do, and sorry. So this is how we do, okay. And the Newton's second law, it states that the rate of change of momentum, I have written here, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied unbalanced force. To the applied unbalanced force. What is the meaning here? Let me clear with the diagram. जो diagram हमने भी बनाया था. This man, let's say the name is Pogo. So Pogo applied some force here, okay, and the force, let's say this force was unbalanced. But why it is unbalanced? Because the net force he is applying, the net force, the F net is greater than 0. Balanced means the net force is 0. So whenever the net force is greater than 0 or is not equal to 0, so that means the force is unbalanced, okay. So that means the rate of change of momentum occur only due to the force. So the mathematical formulation states that F is directly proportional to mv minus u over t. Okay, so this is how the Newton's second law is forming, and we can equate it like k mv minus u over t, but here this constant is 1, k is 1, so the formula itself will become like F is equal to m v minus u over t. So this is the formula of the force, or you can say like the rate of change of velocity, like the v minus u over t. We have learned in the previous classes that acceleration is nothing but the rate of change of velocity, so we can replace it with a. So F is equal to ma. That is precisely the definition of the force. This is the definition of the force. So force is mass times acceleration. This is nothing but the Newton's second law. And how it helps in understanding the first law and the third law, let us further concentrate. Okay, so हम समझते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को पहले. अब न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि फॉर लाइक एवरी ऑब्जेक्ट either is in rest और इन द यूनिफॉर्म मोशन. या तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है. अब यही वाला इनर्शिया, मैंने एक बात की थी स्टार्टिंग में इनर्शिया की. सो इनर्शिया होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट, टेंडेंसी टू रिमेन इन अ पर्टिकुलर स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पे हिंदी में कहें तो अवस्था, और यहाँ पे मतलब है एक स्टेट से कि या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है. जनरली दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं. तीसरा यहाँ पे डायरेक्शन को भी कर लेते हैं कंसिडर, लेकिन फिलहाल अभी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं हम लोग. सो इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ओके, सो दैट मीन्स द वेलोसिटी is 0. If the velocity is 0, so that means what? Like force is equal to mass times acceleration. When the velocity is 0, the acceleration will become 0. Why? Because there is no change in the velocity. The body is at rest, so that has to be 0. Force has to be 0. So that means when the object is at rest, no force will be applied upon it. Okay, so the body will continue to continue in that state. उसी स्टेट में रहने वाली है. वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने वाली है. there will be no change in the state of that object. Okay, similarly अगर बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही इक्वल हैं, और let's say they are v. Okay, let's say it is vf, okay, and ui. So but they both are same. Let's say v, and force is equal to mass time acceleration. The formula is same.
But when there is no change in the velocity, when there is no change, like the acceleration is vf minus ui by t, isn't it? And when you apply these values, vf की वैल्यू v है और vui की वैल्यू v है, okay, by t. So essentially this will become 0. So that means no force will be applied upon it. The body will continue to remain in uniform motion. So that is about the Newton's first law. So न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हमने ये जाना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ कैसे एप्लीकेबल है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. और आगे मैं बढ़ता हूँ इसी में ही, इसी कंटिन्यूशन में न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में. सो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देर इज थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको. देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, सो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ. और यहाँ पर इसे समझने के लिए अगर हम लोग जैसे अगर यहाँ पे एक फोर्स मान लेते हैं F1. ओके, F1 इज द एक्शन फोर्स एंड F2 इज द रिएक्शन फोर्स. सो एक्शन रिएक्शन एक्चुअली काम कैसे करता है? लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं अगेन दोबारा से समझने के लिए. तो डायग्राम काफ़ी इजी रहते हैं फिजिक्स में. जब भी हमें कुछ समझना हो सो हम कोशिश करें कि उसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा चीज़ों को समझें. लाइक मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना दी. थोड़ा सा इसको बेटर बना लेते हैं डायग्राम को, कोशिश करते हैं. ओके, टेबल बन गई. और अब मैं यहाँ पर एक बुक प्लेस कर देता हूँ. यहाँ पे लेट्स से मैंने एक बुक प्लेस कर दी. लाइक एक बुक प्लेस कर दी. ओके, सो इट्स अ बुक. ओके, सो दिस इज अ बुक. अब देखो बुक कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रही है. लेट्स से द फोर्स अप्लाइड बाय द बुक इज F1 and the force which was applied by the table in the opposite direction that is F2. So F1 को हम कह सकते हैं that the force applied by book on table. ओके, टेबल के ऊपर जो फोर्स लगाई तो इसको हम F1 मान लेते हैं. F2 जो है वो क्या है? फोर्स applied by table on book. तो बुक के ऊपर जो फोर्स लगी है. अब हमें ये पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2. माइनस मीन्स इक्वल एंड अपोजिट. अपोजिट मीन्स लाइक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स को हम यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को मैं एक अलग वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और इसके ऊपर मैं कुछ और वीडियोज़ भी डेवलप करूँगा. तो फिलहाल हम इसको भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करते और जनरली मान लेते हैं कि फोर्सेस जो है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा है. तो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लेकर के आता हूँ, सॉरी, तो F1 और ये क्या बन जाने वाला है? अब इसको यहाँ पे वेक्टर को हटा देता हूँ मैं. ठीक है, थोड़ा सा ईजी कर देते हैं इस बात को. तो F1 यहाँ पे प्लस F2 कर देता हूँ मैं और ये बन जाएगा 0. ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेंगी. अब ये ऐसा कब होगा? अब इसको न्यूटन सेकंड लॉ से हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम F1 को दोबारा से लिखते हैं. यहाँ पे F1 को दोबारा से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. सो बुक ने जो फोर्स अप्लाई करी तो उससे कुछ मोमेंटम में चेंज आया, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग. सो मोमेंटम में चेंज आने का मतलब ये है कि जो फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम है डिवाइड बाय टी. दिस इज व्हाट द न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट. इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में डी बाय डी टी लिख देते हैं. ओके, और यहाँ पे P1 लिख देते हैं. इसका मतलब P1 का मतलब ये है P1 इज नथिंग बट PF माइनस PI. जो बुक
कि बुक ने जो फोर्स लगाई उससे जो टेबल का मोमेंटम, बेसिकली ये यहाँ पे जो पी एफ है ये डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे टेबल का फाइनल मोमेंटम, टेबल्स फाइनल मोमेंटम, ओके। एंड ये डिस्क्राइब कर रहा है टेबल्स इनिशियल मोमेंटम, टेबल का ही इनिशियल मोमेंटम। वाई? बिकॉज देखो, जब बुक ने फोर्स लगाई तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा टेबल का। सिमिलरली अब यहाँ पर एक और मोमेंटम मैं लिखूंगा P2, उसका फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला, तो मैं यहाँ पे PF डैश कर देता हूँ और यहाँ पे PI डैश कर देता हूँ। अब ये क्या होगा? ये फाइनल मोमेंटम होगा बुक का, बुक्स फाइनल मोमेंटम, और ये रहने वाला बुक का ही बुक्स इनिशियल मोमेंटम। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि मोमेंटम, अब आप कहेंगे कि सर मोमेंटम तो चेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रही, लेकिन मान लेते हैं ना कि फोर्स लगी तो मोमेंटम में कुछ चेंज आया, क्योंकि उसी बात को समझना है हमने। तो यहाँ पर अब इस बात को थोड़ा सा फर्दर आगे जाते हैं, तो F1 की वैल्यू ये वाली आ गई। सिमिलरली F2 की जो वैल्यू आई वो आएगी d/dt ऑफ P2 मैंने ऑलरेडी बता दिया P2 क्या है, ओके। सो अब इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा F1 प्लस F2, क्या बन जाएगा ये? F1 प्लस F2 बन जाने वाला d/dt। d/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट्स इट। एंड d/dt ऑफ P2, ये एक्चुअली कैलकुलस का ही पार्ट है, ये आपका डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको। तो ये जो है 11th क्लास में हम जनरली पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ और वीडियोस मुझे बनानी पड़ेंगी। सो दिस इज इट विल बिकम, ओके। नाउ इनिशियली हमने क्या कहा था कि फोर्स जो है इक्विलिब्रियम में तब होंगी जब वो जीरो में होगा, जब वो जीरो होगा। इसका आंसर मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा जीरो होगा, ओके। तो यहाँ पर अब d/dt ऑफ P1 प्लस P2 ये ज़ीरो तब होगा, ये मैथमेटिक्स की बात है, जब ये चीज़ कांस्टेंट होगी, जब ये सारा फैक्टर क्या होगा? दिस फैक्टर मस्ट बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स मोमेंटम शुड नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, momentum should not depend upon time, it cannot vary with time. So differentiation of a constant quantity is zero. Constant means whose value is not changing with respect to the variable which we are taking here in the denominator. So we are taking here time, so that means according to the time the momentum is not changing, so that means the momentum is constant, which and this value mathematically will give you zero, and that's what we need to prove. For forces to be in equilibrium, forces को equilibrium में होने के लिए क्या होना चाहिए? वो zero होना चाहिए, okay. So that's how in this video मैंने आपको बताया कि न्यूटन सेकेंड लॉ की हेल्प से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को और न्यूटन सेकेंड लॉ को, न्यूटन थर्ड लॉ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। दैट्स वाई न्यूटन सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए लुसिड पॉइंट के साथ। मैं बहुत सारी वीडियोस अभी बनाने जा रहा हूँ, मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।